Today we'll do the statistics and for your standard 9 for standard 9 the first chapter of statistics is mean and median So what is mean and what is median? Well, let us understand it. Suppose question number 1. To understand this, let us take some example to understand what is mean. Mean किसे कहते हैं? Okay. Suppose the heights of 6 boys. There are 6 boys in your class, and their heights are given as 146 centimeter, 154 centimeter, 160 centimeter. All of them are having different height, correct? 157 centimeter, okay, 153 centimeter, and 160 centimeter. 160 centimeter is repeated. 2 boys are having same height, no problem. So 6 boys are having these heights. Then you have to find the mean height. Mean means average height. So it is given, find mean height. Okay. So mean means average. So how many heights are given? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it is called number of observations. So number of observation is 6. Number of data points. Okay. Now you have to find the average. Okay. So average means what? Mean height. So mean height, we find mean height. We call it x bar. X bar is the mean, equal to, the formula is summation of all the xi, means all the values, data points. Okay. Here I, the value of I starts from 1 up to n, divided by number of observation n. Okay. So let's first, summation of xi means what? I means each. So summation of xi means x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6, because I stand from 1 to 6. So this is x1, this is x2, this is x3, this is x4, this is x5, this is x6. Means find out the sum of all the heights. 146 plus 154 plus 160, 157, 153, 160 by the number of observations. So how many data points are there? So there are total 6 data points, divided by 6. So if you sum it up, okay, and divide it by this, then you will get 930. This is 930 by 6. Okay, 5, 6, 30, 155, correct? So it is 155 centimeters. So what is mean? On an average, you can say by taking the sample, तुमने 6 बॉय का हाइट देखा, ऑब्जर्व किया, मेजर किया, और तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा क्लास में ऑन एन एवरेज जो बॉयज़ का हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है. ठीक है. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. So suppose find the mean of all prime numbers between 20 and 50. So find the mean of all prime number. Prime number means which is not divisible by any other number, which cannot be factorized. Okay. 2 is a prime number except by itself. The number which cannot be divided by other number except by itself is called prime number. Okay. So prime mean of all the prime numbers between 20 and 50. So let's find out. Here data points are not given. Indirectly this clue is given. एक clue दे दिया कि भाई तुमको
प्राइम नंबर जो है ना 20 और 50 के बीच में जो भी जितना भी प्राइम नंबर है वो पहले फाइंड आउट करो और फिर उसका मीन निकालो. ओके, सो 20 इज डिविजिबल, 21 इज डिविजिबल बाय 3 and 7, 22 इज डिविजिबल बाय 11 and 2. So 22 is not a prime number. So prime numbers, now you need to know what is prime numbers. So prime numbers between 20 and 30 50 are 23 is prime number, 29 is prime number, next is 31 is prime number, 36, 37 is prime number, not divisible by any other number, 41 is prime number, 42, 43 is prime number, 44, not 45, not a prime number, 46 is even number, not prime, 47 is prime number, 48, 49 divisible. So these are the prime numbers. Okay, so how many prime numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the number of data points is 7. What is the sum of these data points? 23 plus 29 plus 31 plus 37. Sum it up, 41, 43 and 47, correct? So this is sum. So therefore mean is, what is definition of mean? Mean is sum of data points divided by number of observation. You can write the value of I is equal to 1 to how many numbers? 7. So I equal to 7. So it is equal to the sum of all these numbers is how much? This sum is becoming 251. So it is 251 by 7. So it is how much? 251 by 7 is, let's find out. $21. 35, 6.0, 756, 40, 85. Okay. So this is 35.8 or 35, and then I can write 35 point decimal also you can do, or 6 by 7. What we can do, up to this much it is visible. Okay, so this is equal to 35 upon 6 by 7. This is the mean. Next question. Okay, we'll solve few questions, but let us understand the properties of mean. Properties of mean. Now, so first property is this: the sum of deviation of x bar, okay, from the observation is equal to 0. Suppose x1, x2, x3 dot xn are the number of data points, number of observations. Okay, so how many observations? Of n observations. Okay, now if you find out the deviation, suppose x bar, these are the data points, these are the observations. What we are studying, हम लोग पढ़ के रहे कि भाई मीन का क्या क्या प्रॉपर्टी है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं. तो मान लो कि ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3 अप टू xn, दिस आर द n ऑब्जर्वेशन इज गिवन. ठीक है, और मान लो कि इसका मीन है, ये है मीन. तो डेविएशन किसे कहा जाता है? डेविएशन मीन्स द सम ऑफ ऑल द डेविएशन. डेविएशन मीन्स ये जो डाटा पॉइंट्स है ये कितना दूरी पर है, मतलब x माइनस एक्स बार. तो पहला फर्स्ट पॉइंट का ऑब्जर्वेशन कितना डेविएशन होगा? फर्स्ट पॉइंट का डेविएशन कितना होगा? मान लो ये डाटा पॉइंट है मेरा, है ना, x1 माइनस एक्स हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट का x बार हो जाएगा. फर्स्ट पॉइंट का डेविएशन d1 हो गया.
सेकेंड का डेविएशन कितना होगा, सेकेंड डेटा पॉइंट का x2 माइनस एक्स बार, ठीक है। थर्ड पॉइंट का डेटा डेविएशन कितना होगा, x3 माइनस एक्स बार, ठीक है। इस तरह से फोर्थ का होगा x4 माइनस एक्स बार। तो एक्स nth डेटा पॉइंट का डेविएशन कितना होगा, xn माइनस एक्स बार। अभी इसमें कहा जाता है कि अगर सारे डेविएशंस को तुम ऐड कर दो, मतलब समेशन ऑफ d1 प्लस d2 प्लस d3 है ना, जितना भी तुमने डेविएशन निकाला अप टू dn सबको ऐड कर दो, तो क्या होगा, ये समेशन ऑफ ऑल द डेविएशन स्मॉल डेल्टा से लिखा मैंने, इक्वल टू सभी ऐड हो जाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, हाँ सब ऐड हो जाएंगे, माइनस एक्स बार, ये जो मीन कितना टाइम होगा, n टाइम लिखना पड़ा तो n इंटू एक्स बार हो जाएगा। एंड व्हाट इज x1 प्लस x2 प्लस x3, देखो ये डॉट 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 होगा, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn बाई n, इसको क्या कहा जाता, x बार कहा जाता। सो दिस मच इज हाउ मच, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये क्या है, न्यूमरेटर इज n टाइम x n x बार, n x बार माइनस n x बार, सो इट इज 0। सो व्हाट इज सेड कि भाई सम ऑफ ऑल द डेविएशंस, I stands from 1 to the number of observation, जितना n तक ऑब्जर्वेशन है, इज इक्वल टू 0। डेविएशन को मैं x माइनस एक्स बार भी लिख सकता हूँ, xi माइनस एक्स बार, i इज इक्वल टू 0 से ले लो या 1 से ले लो, 1 से n, ये 0 होता है। मतलब सारे जितने भी मेरा ऑब्जर्वेशन है सबका अगर डेविएशन निकालोगे और सबका अगर फिर सम करोगे, सो इट विल कम एज 0। एक एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल करते हैं, चलो एक एग्जांपल करते हैं, स्टोरी हम एक सॉल्व करता हूँ। अभी दिया हुआ है कि सपोज वी हैव द डेटा पॉइंट्स, कुछ ऑब्जर्वेशन का वैल्यूज़ दिया हुआ है और बोला गया है कि इसका डेविएशन का सम निकालो। सो डेटा पॉइंट्स आर, डेटा पॉइंट्स या ऑब्जर्वेशंस जो भी बोलो, या ऑब्जर्वेशंस आर कितना, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 एंड 10। तो इसको अभी प्रूव करो, प्रॉपर्टी नंबर 1 को प्रूव करो, फाइंड द सम ऑफ डेविएशन, फाइंड सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेल्टा मीन सम ऑफ x माइनस एक्स बार, ठीक है। तो सबसे पहले तो x बार निकालता हूँ, मीन क्या है इसका, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बाई 2, ठीक है। तो कितना नाम, सॉरी बाई नॉट बाई 2, बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना भाई, 1 2 3 4 5, 5 ना, 4 2 6 6 12 18 8 20 30 ना, 30/5, 6 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट डेटा पॉइंट का, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का डेविएशन कितना हो गया, 2 माइनस 6 है ना, x1 माइनस एक्स बार। चलो इसको मैं थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, इसको ऐसे करते हैं, डेल्टा 1 इज x1 माइनस एक्स बार, x1 इज हाउ मच, 2, एक्स बार इज 6, तो कितना हो गया, -4, डेल्टा 2 x2 माइनस एक्स बार, सेकेंड डेटा पॉइंट 4 माइनस 6 कितना हो गया, -2, थर्ड डेटा पॉइंट x3 माइनस एक्स बार, ठीक है, x3 6 माइनस 6, ये 0 हो गया। फोर्थ डेटा पॉइंट x4 माइनस एक्स बार, यहाँ हम दिखा रहे हैं कि सम ऑफ ऑल द डिविजन्स कितना होगा, तो 6 के बाद 8 है, 8 माइनस 6 प्लस 2, ठीक है। फिफ्थ डेटा पॉइंट x5 माइनस एक्स बार, फिफ्थ डेटा पॉइंट क्या है, 8 तो हो गया, अच्छा 5 तो डेटा पॉइंट ही है मेरा, है ना, 10 माइनस 6, तो कितना हो गया, +4। देखो अगर सबमिशन करेंगे +4 और +2, +6 हो गया, और -2 और -4 -6 हो गया, तो समेशन ऑफ डेल्टा कितना हो गया,
ये हो गया, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द डेविएशंस, है ना, इज इक्वल टू 0। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। जितना भी ऑब्जर्वेशंस है उसका अगर डेविएशंस निकालोगे और उसको ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि मीन से डेविएशन निकल रहे हैं इसलिए 0 होगा। अभी फाइंड द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द डेटा पॉइंट फ्रॉम देयर मीन। सो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, ऑब्जर्वेशंस आर कितना 4, 5, 7, 9, 15, 4, 5, 7, 9 एंड 15। अभी निकलना क्या है, फाइंड द सम ऑफ डेविएशन। दो चीज़ निकलना है, एक बोल रहा फाइंड द सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन। नंबर 1। सेकेंड, फाइंड द मीन। देखो डेविएशन निकालने के लिए क्या चाहिए, मीन चाहिए। तो मैं पहले इसको करता हूँ, फाइंड द मीन वाला पार्ट जो है ना पहले करता हूँ। फाइंड द मीन, तो मीन क्या हो जाएगा, x बार जितना भी डेटा पॉइंट्स है उसको नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 लिखते हैं, 4 + 5 + 7 + 9 + 15, ठीक है, बाई 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 5, 4, 9, 9 7 कितना हो गया, 16 और 9 25 एंड 5 हो गया 30 एंड 40 बाई 5 8 हो गया। मीन इज 8। सो देयरफॉर डेल्टा 1 डेविएशन ऑफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, 4 का डेविएशन क्या होगा, 4 - 8 -4। सेकेंड ऑब्जर्वेशन का डेविएशन क्या हो गया, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, 5 है, तो 5 - 8 -3। थर्ड ऑब्जर्वेशन का डेविएशन कितना हो जाएगा भाई, 7 - 8 कितना हो जाएगा, -1। फोर्थ ऑब्जर्वेशन का डेविएशन कितना हो जाएगा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन है कितना, 9 - 8 +1। एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का डेविएशन जो है ये हो जाएगा 15 - 8 7 हो गया, ठीक है। तो देखो -4 - 3 कितना हो गया, -4 और -3 हो जाएगा -7 और ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ तक हो गया -8 और +4 और +1 और +2 हो गया +8। तो अगर मैं दोनों को सम करूँगा तो -8 और +8 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर समेशन ऑफ ऑल द डेविएशंस, आई का रेंज क्या है, 1 से लेकर 1, 2, 3, 6 तक है ना, 2, 3, 4, 5 तक है, 5 इक्वल टू 0। तो सम ऑफ डेविएशन मेरा कितना हो गया, 0 हो गया एंड मीन हो गया 8, ठीक है। चलो इसको अभी ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हम लोग कर लिया, करेक्ट। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2 करते हैं। मीन का हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन एक निकाल लिए कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स इज 0। ये अभी 2 नंबर प्रॉपर्टी करते हैं। इसमें क्या बोला जाता है, इसमें बोला गया कि सपोज x बार एक मीन है, ठीक है, x बार इज ए मीन मान लो। पहले अंडरस्टैंड करते हैं ये क्या है, x बार इज द मीन, है ना। और सारे ऑब्जर्वेशन में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर देता हूँ, x फर्स्ट वन जो ऑब्जर्वेशन है ना x1 उसमें ऐड कर देता हूँ a। किसका मीन है, x बार किसका मीन है, सम ऑफ x का, मतलब x1 + x2 + x3, है ना। इस तरह का जो nth ऑब्जर्वेशन है इसका जो मीन है वो है x बार, ठीक है। तो अगर सारे एक एक ऑब्जर्वेशन के साथ एक एक कांस्टेंट वैल्यू में ऐड करते चलो, ये ऐड करते गए, सारे ऑब्जर्वेशन के साथ एक ऐड करते चला, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो
द मीन ऑफ n नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर x है, देन द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस है ना विल बी, तो कांस्टेंट वैल्यू अगर ऐड करते हैं तो मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन जब a सब में ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, x बार प्लस a हो जाएगा। क्या कंडीशन है कि अगर x1 x2 x3 xn का मीन x बार है तो x1 प्लस a x2 प्लस a x3 प्लस a xn प्लस a का जो है टोटल मीन होगा वो है x बार प्लस a। ठीक है, अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया। अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, अगर सारे ऑब्जर्वेशन में ऊपर का ही जैसा कंडीशन है, मान लो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एक घटा दिया, ए सब्सट्रैक्ट किया, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में भी ए कम कर दिया, थर्ड ऑब्जर्वेशन में से भी ए कम कर दिया, ऐसे करते करते nth ऑब्जर्वेशन में से भी अगर ए कम कर देंगे और ये सब डेटा पॉइंट्स, ये जो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो डेटा पॉइंट आया इसका अगर हम मीन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मीन ऑफ ऑल दिस न्यू डेटा पॉइंट्स इट विल बी x बार माइनस ए, है ना, x bar minus a. So if same value is subtracted from all the data points whose arithmetic mean x bar, then these data points after subtracting a constant number from all the data points will be x bar minus a. Okay, so this property says that the if each observation under consideration is decreased by a quantity a, सारे ऑब्जर्वेशन को अगर एक क्वांटिटी से डिक्रीज कर दिया जाता तो देयर मीन ऑल्सो विल बी डिक्रीज बाय क्वांटिटी ए। दिस इज द न्यू मीन। तो फर्स्ट पॉइंट वेरी क्लियर है, अगर सेम कांस्टेंट क्वांटिटी सारी ऑब्जर्वेशन में ऐड कर देंगे तो जो न्यू ऑब्जर्वेशन है डेटा पॉइंट्स का वो हो जाएगा, उसका जो मीन होगा वो एक्स बार प्लस ए हो जाएगा। सिमिलरली अगर सारे ऑब्जर्वेशन में से एक कांस्टेंट क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट करते गया तो न्यू मीन जो होगा वो हो जाएगा अर्लियर मीन माइनस है। ठीक है, नो प्रॉपर्टी नंबर 4, जल्दी से हम प्रॉपर्टी पहले 5 प्रॉपर्टी है इसको स्टडी कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है कि सपोज मेरे पास ये सब डेटा पॉइंट्स है, x1 x2 x3 xn डेटा पॉइंट है जिसका मीन हमको पता है x बार है। अभी हमने क्या किया, सारे ऑब्जर्वेशन में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते गया, सारे ऑब्जर्वेशन में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दिया। ठीक है, अभी ये जो डेटा पॉइंट्स मेरा मिला x1 x2 x3 xn, इस डेटा पॉइंट का जो मीन होगा वो कितना हो जाएगा, a इंटू एक्स बार। देन इफ a constant value is multiplied with each of the observation, each of the data points, then the new mean will be equal to, है ना, new mean of these data points will be equal to how much, a into x bar, means that mean will also be multiplied by a। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। अभी क्या बोल रहा है कि सपोज x1 x2 x3 मेरे डेटा पॉइंट्स है और हर एक डेटा पॉइंट को मैं एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करते गया, सबको डिवाइड करेंगे तो एक न्यू डेटा पॉइंट मुझे मिला। ये सब न्यू डेटा पॉइंट्स है, सारे ऑब्जर्वेशन जो x1 x2 x3 है ना, सबका मीन था x बार। अभी सबको मैंने सारे डेटा पॉइंट को ऐसे डिवाइड किया तो ये जो न्यू डेटा पॉइंट मिला ये सब, इसका जो मीन होगा ना, this mean will be equal to, then the mean will be equal to, mean is x bar by a, x bar is average mean divided by a। so ये 5 प्रॉपर्टी हम लोग कर लेंगे, then we will solve some problems related to mean। okay, let's do it in a second video। कुछ सम करते हैं। okay, ओके अभी बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, गिवन ऑब्जर्वेशंस क्या है, डेटा पॉइंट्स है जो रीडिंग बार बार लिया गया ना उसका वैल्यूज़ है। तो मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ जैसे 5 6 17 8 9 15 23
23, 18, 10 एंड 24। ये सब ऑब्जर्वेशन मुझे दिया हुआ है। अभी हमको क्या निकालना है? फाइंड द न्यू मीन। जो अभी कुछ ऑपरेशन करेंगे उसके बाद जो न्यू मीन होगा, जो रिजल्टेंट मीन होगा, वो हमको निकालना है। कब? कौन कौन से सिनेरियो में, कौन कौन से केस में? इफ़ इट इज़ इंक्रीज बाई +3, सारे ऑब्जर्वेशन को +3 करके ऐड कर दो। इफ़ इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 4, if all the observations are multiplied by 4, then what will be the new mean? If all are decreased by 2, -2 करते हैं, तब क्या होगा? And fourth, if all are divided by 5, तो +3 ऐड करने से क्या होगा? -2 करने से क्या होगा? सभी ऑब्जर्वेशन से -2 कर देंगे तो क्या होगा? 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? और 5 से डिवाइड करने से क्या होगा? देखो अभी एक तो चूँकि नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो हम सब में +3 मल्टीप्लाइड बाई 4 -2 है ना, डिवाइडेड बाई 5 करके देख भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, देखना नहीं है। वी नो दैट when numbers are increased, then the new mean will be, resulting new mean after increasing will be x bar plus a means जो जितना से बढ़ाएगा। तो x बार कितना है? 5, 6, 6 कितना ऑब्जर्वेशन है? x बार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा डाटा पॉइंट को। कितना? 5, 6, 17, 8, 9, 15, 23 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना? 2, 2, 4, 5, 6 ऑब्जर्वेशन ना। 2, 4, 6, 7 ऑब्जर्वेशन। तो x बार विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये सबको अगर ऐड करते हैं ना, तो 5, 6, 17 को ऐड करके डिवाइड करने से 135। अच्छा, ये निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, कितना दिया? 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑब्जर्वेशन है। हम क्यों नहीं लिखे? 23 के बाद क्यों छोड़ दिया? 18 भी लिखना है, 10 भी लिखना है, 24 भी लिखना है। ठीक है, सबको हम ऐड करते हैं तो ये 135 आता है। ऑब्जर्वेशंस कितना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो 135 हो गया मीन। सब में प्लस मैंने ऐड किया, पहले मीन तो निकलते थे बाय दिस, प्लस सब में कितना ऐड किएगा? 3, तो 13.5 तो हो गया मेरा मीन। उसमें 3 ऐड कर दो, कितना हो गया? 16.5। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड मतलब +3 सब में ऐड कर। अच्छा, +3 तो ऐड कर दिया, पहला वाला हो गया। -2 सब में से निकाल दिया हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? न्यू मीन विल बी इक्वल टू वही जो ओल्ड मीन है उसमें -2 हो जाएगा, क्योंकि सब में -2 ऐड किया। तो ओल्ड मीन 13.5 -2 तो 11.5 हो गया। थर्ड में क्या बोला? सबको 4 से मल्टीप्लाई करो, सभी को। तो कर भी सकते हैं हम। तो डाटा पॉइंट्स और ऑब्जर्वेशंस आर एक्सरसाइज। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। कितना? हमको क्या करना पड़ा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा ना, या तो 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज नंबर 1। नहीं तो हम बोल सकते हैं विद द न्यू इंटरवल, सिंस इट इज मल्टीप्लाइड ना, सो द न्यू इंटरवल, द न्यू मीन विल बी इक्वल टू हाउ मच? समेशन ऑफ मीन। ठीक है, समेशन ऑफ मीन जितना भी होगा वो होगा इंटू ए टाइम्स द समेशन ऑफ मीन इंटू ए। ठीक है, सो जो भी मीन हुआ तुम्हारा, कितना अभी कितना ऐड किया हमने? सब में कितना मल्टीप्लाई किया? 4, और हमारा मीन कितना निकला? इंटू समेशन ऑफ मीन 11.5।
45.0. Okay. So A times the mean. Mean कितना 11.5 हो गया according to this. अच्छा नहीं, अभी -2 तो हो गया. अभी क्या हो गया, 4 से कितना से मल्टीप्लाई किया, 4 से -2 वाला तो हो गया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 4 इंटू दिस मीन. तो मेरा जो टोटल जो सम बना ना वो नॉट 11.5, टोटल सम मेरा कितना बना 135 बना. करेक्ट ना. समेशन ऑफ मीन, समेशन ऑफ डेटा पॉइंट्स. मतलब जो मीन है, मीन को मैं क्या करूँगा ए से मल्टीप्लाई कर दूँगा. ठीक है. ए इंटू नॉट समेशन ऑफ एक्स, दिस इज रॉन्ग, ए इंटू दिस मच. तो सबसे पहले इसको ठीक करते हैं. ए टाइम्स ए 2 है ना, सॉरी ए इसमें कितना है 4 है. ए टाइम्स द है ना एक्स बार. तो ए हो गया कितना, किससे मल्टीप्लाई किया 4 से मल्टीप्लाई किया. एक्स बार कितना मेरा 135 ना, 135/10. So third 135/10. 10 data points are there. So this is how much. So AX bar means 13.5 into 4. 13.5 into 4 means, अच्छा 5 से इसको कैंसिल करना है ना, तो 4, अच्छा 4 से पूरा तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, 2 5 7 10. ओके. फिर 5 से ये कटेगा, 5 2 27 into 2 मतलब 54 is the answer. Okay. So the new mean, suppose this is divided by capital X. New mean is old mean multiplied by A. Similarly, it is divided by 5. So all the data points are divided by 5. Okay. So therefore the average, the new mean will be how much? New mean is earlier mean divided by. Here now you have to find out the is equal to. Abhi now what we have done, divided by 5. So whatever was the earlier mean by 5. So what was the earlier mean? Earlier mean was 13.5, correct? 130/10. 13.5 divided by 5. 27, correct? So फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा ये भी आ गया, प्रॉपर्टी भी हो गया. सो हम लोग ने अभी क्या क्या देखा, 5 प्रॉपर्टीज़ भी देखा एंड अभी सॉल्व भी कर रहे हैं प्रॉपर्टी का यूज़ करके. चलो अभी अच्छा एक क्वेश्चन दिया कि सपोज कुछ डेटा पॉइंट्स दिया हुआ है. ओके. सो लिखा है कि द मीन ऑफ द क्वेश्चन इज द मीन ऑफ 7 5 8 ये पी दिया हुआ नहीं है. ठीक है. एंड 11 इज 8 है. इसका जो मीन है 1 2 3 4 डेटा पॉइंट का जो मीन है वो है 8. ठीक है. तो हमको पी का वैल्यू निकालना है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी? तो कुछ नहीं है इसमें. सो इट इज़ गिवन द डेटा पॉइंट्स कितना है भाई, कितना ऑब्जर्वेशंस है 4. दिस इज इक्वल टू पी.
तो ये कितना होगा 7 7 8 सर 15 15 and 5 20 20 by 4 20 plus p by 4 equal to 8. Sorry, ये p नहीं है 8 given. So अच्छा ये 20 प्लस पी है ना, ये 4 एक काम करते हैं, इसको लाना रहता है. सो 20 प्लस पी इक्वल टू 4 इधर जाएगा, 4 इंटू 8 इज 32. सो पी इज इक्वल टू 32 माइनस 20 to 12. ठीक है. सो दिस इज कम्प्लीटेड. नाउ और एक दो सम करते हैं मीन का क्वेश्चन. The mean of 40 observation is 160. This is mean is given as 160. Number of observation is 40 given. Okay. It was detected that the value of 165 was wrongly copied as 125. मतलब क्या ना, कॉपी करना था 165, ये कॉपी करना था मीन निकालते समय, और उसने दिस इज द रॉन्ग वैल्यू. ये कॉपी करना था, दिस इज द करेक्ट वैल्यू. सॉरी, इसमें क्या लिखा कि रॉन्गली कॉपीड एज 125. सो 165 वाज द राइट वैल्यू. and 160 is the correct value. ओके. तो क्या हो गया, तो मतलब हमने क्या किया, जो मीन निकाला ना 40 ऑब्जर्वेशन का, उसमें से एक डेटा पॉइंट को मिस्टेकनली हम लोग क्या किया, ये राइट वैल्यू है ना, ये रॉन्ग वैल्यू है. 160 इज द रॉन्ग वैल्यू. 160 रॉन्गली कॉपीड टू 125. अच्छा, 165 की जगह पे 125 आ गया है. ये जो है ना 165 जो है ना, इट वाज डेटेड द वैल्यू ऑफ 165 वाज रॉन्गली कॉपीड एज 125. अच्छा, 165 के जगह 165 ना लिख के 125 लिख दिया. 125 लिख दिया, ये रॉन्ग वैल्यू कॉपी कर दिया. ठीक है ना, दिस इज रॉन्ग. तो अभी तुमको क्या बताना है, फाइंड द करेक्ट मीन. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखो, इसमें टोटल मीन दे दिया, ऑब्जर्वेशन दे दिया, तो टोटल सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, x बार. सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस कितना हो गया, पूरा 40 ऑब्जर्वेशन का 160 है, तो पूरा ऑब्जर्वेशन कितने का है, सम कर दो 40 डेटा पॉइंट्स का. 0 0 64,000 तो टोटल मीन है. अभी क्या हो गया ना, 64 में से रॉन्ग कितना हो गया, 125 रॉन्ग हो गया. करेक्ट क्या होना चाहिए, 165 होना चाहिए. दिस शुड बी द आइडियल वैल्यूज ऑफ ऑल द डेटा ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स. ठीक है, एक साथ. तो कितना हो गया भाई, इसको निकालते हैं हम लोग पहले. 0 माइनस 6400 0 6360 60 40 तो माइनस हुआ ना, 6400 से 40 माइनस 0. ओके, 6400 से, ठीक है, 6350. अभी ये हो गया तुम्हारा टोटल ऑब्जर्वेशंस. मतलब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 6360. ओके. सो हमको निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द करेक्ट मीन. करेक्ट मीन निकालना है.
तो अभी ये हो गया ऑब्जर्वेशन, तो देयरफॉर करेक्ट मीन इक्वल टू, अभी तो मैं सब डाटा पॉइंट्स को करेक्टली सम अप किया, क्योंकि मेरा जो ओल्ड जो रॉन्ग वैल्यू उसको सब्सट्रैक्ट करके न्यू वैल्यू ऐड कर दिया, तो 6360 हो रहा एक्चुअल सब सम का वैल्यू करने से। ओके, बट मेरा इसमें ऑब्जर्वेशंस कितना था, है ना, अभी मीन निकलना है ना हमको, यू हैव टू फाइंड आउट द मीन। सो 40 ऑब्जर्वेशंस था इन 40 से डिवाइड करते हैं, $139। ओके, करेक्ट वैल्यू ऑफ मीन इज हाउ मच। हमने क्या किया, अच्छा 160 हो गया मेरा मीन, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ, सम ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस 6400 हो गया, तो उसमें से हमको इनकरेक्ट वैल्यू को 125 को माइनस करके 165 को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 6400। ओके, 6400 में से करेक्ट वैल्यू कितना, अच्छा अभी 40 को माइनस कर दिया इसमें, सॉरी, ये अभी करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आया, करेक्ट ना, 6400 करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आया, ठीक है। अभी हम इसको करेंगे, therefore correct mean equal to correct data point sum, that is 6400 divided by correct number of data points। कितना number of data points था, 40, 160 हो गया। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स कितना आया था मेरा, 6400 नहीं है, ये माइनस करने पर 6400 नहीं आया था, 6440 आया था, क्योंकि इसमें से 40 ऐड होगा ना, 6440। ओके, तो ये हो जाएगा 6440, ये हो जाएगा 161। और एक दो सम कर लेते हैं हम। द मीन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, द मीन ऑफ 100 observations, mean of 100 observations was found to be 30। ये 30 मिला। If 2 observations are wrongly taken as 32 and 12, अच्छा 2 observations noted wrongly, तो रॉन्ग वैल्यूज कितना है, 32 एंड कितना रॉन्ग हो जाएगा, 32 एंड 12, जबकि इसका करेक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ देखने में गलती हो गया, नोट करने में गलती हो गया, तो हम 23 एंड 11 के बजाय हम क्या लिखा, 32 एंड 12। तो हमको क्या निकालना है, करेक्ट मीन निकालना है, फाइंड करेक्ट मीन, ठीक है ना, करेक्ट मीन निकालना है। तो पहले तो 100 ऑब्जर्वेशन का सम कितना हो गया, तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस कितना हो गया, ये तो मीन ना, 100 ऑब्जर्वेशन मीन 30 है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो गया, n इंटू x बार 30,000 हो जाएगा, नहीं 3,000 हो जाएगा, 3,000 मेरा एक्चुअली सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस है। चलो रॉन्गली हुआ, तो जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस है उसको हम हटा देंगे, 32 को हटा देंगे, 12 को हटा देंगे,
और करेक्ट ऑब्जर्वेशन को इसमें जोड़ेंगे, कितना 23 और 11, ये तो 1 हो गया, और 23 अगर ऐड कर रहे हैं 9 हो गया, ये -1 हो गया, और ये 3000 हो गया। तो अभी जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन विद करेक्ट वैल्यू कितना हो गया, 3000 में से मेरा जो है 10 माइनस हो जाएगा, तो 2990 हो जाएगा दिस। कितना का ऑब्जर्वेशन है, कितना ऑब्जर्वेशन का सम ये है, 30 ऑब्जर्वेशन का। therefore correct mean equal to 2990 by 30, that's all. Okay, this is coming around 29.9. इस सम में क्या दिया था कि 30 ऑब्जर्वेशंस का मीन 100 है, बट वो 30 ऑब्जर्वेशन नोट करते समय 32 की जगह पे 23 लिख दिया, 23 की जगह पे 32 लिख दिया, और 11 की जगह पे 12 लिख दिया। तो एक्चुअली अगर मैं करेक्ट लिखता तो क्या मीन होता, करेक्ट ना, दिस इज द क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, टोटल सम निकाल दिया कि भाई 30 ऑब्जर्वेशन का अगर मीन 100 है तो टोटल ऑब्जर्वेशन का सम कितना है, 3000 है। तो उसमें से 32 और 12 गलत था, तो सब्सट्रैक्ट किया, करेक्ट जो है उसको ऐड किया, तो मेरा एक्चुअल ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए था। कितना ऑब्जर्वेशन का, 30 का। तो मीन कितना हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो दिस बिकम्स 29.9। ठीक है, चलो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, एक स्टोरी सम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या कहा गया कि द मंथली सैलरी ऑफ 10 पीपल इज 2890 है ना। तो गिवन है 10 पीपल्स मंथली सैलरी कितना हो गया, 2890 रुपीज़, रुपीज़ हो गया। ठीक है, चलो, वन मोर पर्सन whose monthly salary is 3000 has also been taken into consideration. Find the mean of monthly salary of 11 people. अभी 10 आदमी का मंथली सैलरी है 2800। अभी 11th पर्सन जो है ना, 11% इसका मंथली सैलरी दिया हुआ, 11% का मंथली सैलरी है, सैलरी कितना हो गया, इक्वल टू 3000 रुपीज़। ठीक है ना, तो मीन थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो एवरेज मीन कितना सैलरी कितना 2890, बट जिस मंथ सैलरी का, जिस आदमी के सैलरी को मैं ऐड करूँगा वो मीन से भी ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली मीन बढ़ जाएगा, है ना। तो टोटल मंथली सैलरी 2890 था, है ना, तो मीन मंथली सैलरी 2890 था, तो टोटल इनकम ऑफ 10 पीपल्स कितना था, टोटल सैलरी of 10 people, mean of 2890 into 10, तो 28,900 ना, इतना हुआ। तो 11% सैलरी को ऐड कर देता हूँ, सो देयरफॉर सम मीन्स टोटल सैलरी, सम ऑफ सैलरी ऑफ 11 पीपल कितना होगा, इसका 28,900 में से 11 पीपल जो है ना जिसका ऐड किया वो 3000 ऐड कर देते हैं, 31,900। तो मीन कितना हो जाएगा, देयरफॉर मीन इज इक्वल टू हो गया 31,900 डिवाइडेड बाई 11, दैट विल बी द मीन। मीन का ही अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी मीडियन का कोई क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट नहीं किया। ओके, सो अभी क्या बोला, मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 200। सो गिवन क्या है, मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू कितना, 200। ठीक है,
If one observation is excluded, the mean of remaining observation is 198. If one excluded one observation, एक को अगर छोड़ दिया जाए, exclude कर दिया जाए, excluded, then mean of 14 observation कितना हो जाएगा, है ना? mean of remaining observation, mean of remaining observation मतलब 14 observation, ठीक है? 15 में से एक गया, observations कितना हो गया भाई? 198, ठीक है? So find the value of excluded observation. Find excluded observation. Very good question. Excluded observation. Very easy question because देखो 15 observations का sum है, 15 observation का mean है 200. तो total of 15 observation कितना होगा बोलो? 15 observations equal to 200 into 15, 30, ठीक है? 30,000 हो गया. उसमें से एक ऑब्जर्वेशन को एक्सक्लूड कर दिया. चलो, तो मान लो कि द ऑब्जर्वेशन विच इज एक्सक्लूडेड वैल्यू इज एक्स ना. लेट एक्स बी द एक्सक्लूडेड, जिसको छोड़ा वो छोड़ दिया, वो छोड़ा हुआ जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो है एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन. तो अभी 14 ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर टोटल ऑफ 14 ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? 3000 माइनस एक्स, इसको तो छोड़ दिया. 3000 तो था ना, 3000 टोटल ऑफ 14 ऑब्जर्वेशन. देयरफॉर मीन ऑफ 14 ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? मीन ऑफ 14 ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? 3000 माइनस एक्स बाई 14. ये वैल्यू जो है ना हमको दिया हुआ 198. देयरफॉर 3000 माइनस एक्स बाई 14 इक्वल टू दिया हुआ है कितना? 198. सो 3000, बस अभी इक्वेशन सॉल्व करते हैं. 14 इंटू 198. सो एक्स इक्वल टू 3000 माइनस 14 इंटू 198 इक्वल टू एक्स. Correct. So 14 into 198 is 2722. 2772. 3000 से माइनस कर देते हैं इसको. So 228 is the excluded observation. So ये आंसर हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अभी इसमें क्या दिया हुआ है कि आउट ऑफ 25 नंबर्स द मीन ऑफ 15 नंबर्स इज. क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ पहले. आउट ऑफ 25 नंबर्स, देयर आर 25 नंबर्स, ठीक है? तो मीन ऑफ 15 नंबर इज 36. मीन ऑफ 15 नंबर is equal to कितना? 36. and the mean of remaining number 10 नंबर है ना. mean of remaining 10 remaining 25 में से 15 तो 10 नंबर्स ये भी दे दिया होगा. mean of remaining number is mean of remaining number is 26. तो तुमको निकालना है कि 25 नंबर्स का एक्चुअल मीन कितना है. वेरी इजी. देखो मीन ऑफ 15 नंबर इज 36. तो टोटल ऑफ 15 नंबर्स कितना हो जाएगा? 15 इंटू 36. सिमिलरली टोटल ऑफ 10 नंबर्स कितना हो जाएगा, है ना. मीन अगर मान लो 26 है
है ना, तो 10 नंबर का मीन 26 है। टोटल कितना होगा 26 इंटू 10, सो टोटल ऑफ 25 numbers, total of 25 numbers. This is sigma x, huh? This is actually sigma x. This is how much? This plus this, 25 into 36, huh? 15 into 36, ये कितना 15 36 कितना हो गया 540 हो जाता है, 5260 हो जाता है। तो इन दोनों को सम कर देते हैं, 0 10 0 8 ना 800। तो therefore mean is equal to summation of x by n 800 by 25, ठीक है। 5 से जाएगा 60, 5 से जाएगा 32, so 32 is the mean of 25 numbers, ठीक है। So now let us recap what we have learned very fast। एक बार हम तो हमने क्या किया, मीन स्टडी किया। फर्स्ट जो है ना मीडियन हम करेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में। व्हाट इज मीन? मीन मीन्स एवरेज, सम ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो हम मीन को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, समेशन ऑफ एक्स। एक्स डिनोट्स द डेटा पॉइंट्स, x1 x2 x3 x4 कैसे डिनोट करते हैं, एक आई डालते हैं और आई का वैल्यू 1 से i इक्वल टू 1 से लेकर n तक होता है। ये जो सिंबल है ना, समेशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू 1 टू, इसका मीनिंग क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरह से x है। सिग्मा मीन्स समेशन, ऐड करना, ओके। तो अभी जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लिया था सॉल्व करने के लिए कि भाई 6 बॉयज़ का हाइट दिया हुआ है, मीन निकालना है। तो चलो हम सम ऑफ हाइट निकाल दिया एंड उसका नंबर ऑफ 6 बॉयज़ है तो 6 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज हाइट निकल गया। वेरी सिंपल। प्राइम नंबर, इसमें 20 और 50 के बीच में जो प्राइम नंबर है उसका मीन निकालो। तो पहले हम प्राइम नंबर निकाला, फिर उसको सम करके कितना प्राइम नंबर्स हुए, इसमें 7 प्राइम नंबर हुआ, 7 से डिवाइड किया तो मीन निकल गया। अभी 6 प्रॉपर्टी मीन का क्या है कि भाई अगर मेरा x बार अगर मीन है और ऑब्जर्वेशन अगर x1 x2 x3 है, तो सभी का डेविएशन का सम हम अगर हम लेंगे, समेशन ऑफ डेविएशन लेंगे i इक्वल टू 1 से लेकर n तक, तो ये 0 होगा। क्यों? बिकॉज मीन से डेविएशन ले रहे हैं ना, है ना। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का डेविएशन कितना हो गया, इसको हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का डेविएशन क्या मतलब है, ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, ये हो गया डेविएशन। इसको सम कर देने से ये 0 हो जाता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने, हाँ, तो समेशन ऑफ डेविएशन 0 होता है, ओके। फिर हमने क्या निकाला कि भाई अगर सभी ऑब्जर्वेशन में ए ऐड कर देते तो रिजल्टिंग मीन जो होता है ए ऐड कर देने से वो ओरिजिनल मीन जो था उससे ए ऐड हो जाएगा सिंपली। क्यों ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि एन टाइम से ए है और एन टाइम से ए को जब ऐड करके एन से डिवाइड करेंगे तो एन ए बाई ए मीन्स ए हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर देंगे सभी ऑब्जर्वेशन में से ए, तो मीन भी मीन से भी सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो रिजल्टिंग मीन के जो है क्या हो जाएगा, एक्स बार ओरिजिनल मीन माइनस ए, ये रिजल्टिंग मीन हो जाएगा। मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में से अगर ए हटा दिया जाए, ए सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, तो रिजल्टिंग मीन मेरा ओरिजिनल मीन माइनस ए हो जाएगा। ए अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्टिंग मीन, पहले मीन था एक्स बार, तो उसमें से ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में से ए डिवाइड कर देंगे तो रिजल्टिंग मीन हो जाएगा ओरिजिनल मीन बाई ए, ठीक है। बस दिस आर द 6 ऑब्जर्वेशन। फिर हम लोग ने कुछ सम्स लिया, सम्स तो हम लोग डिटेल में समझे, सो आई विल नॉट रिपीट इट। सो नेक्स्ट चैप्टर विल बी ऑन मीडियन। सो व्हाट इज़ मीडियन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मीडियन, हाउ टू कैलकुलेट मीडियन, है ना। मीन हो गया, अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में मीडियन करेंगे। मीडियन की इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे मीडियन निकालेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास टॉपिक।